ہماری محنت، ہمارا آنا اور جانا لگا رہے گا، لیکن زمین ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور اس زمین و آسمان کو بنانے والا بھی قائم رہے گا، کیونکہ میرے عزیزو اگر آج میں اس مائک میں بات کرتا ہوں تو آخر اس کو کسی نے بنایا، جو مٹیریل اس مائک میں لگا اس کو بھی کسی نے بنایا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں ہر چیز جو بنتی ہے اس کے اندر کسی کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ بے شک آج ہماری زندگی میں، ہماری محنت میں عمل دخل ہمارے خداوند کا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں۔ تو بوجھ سے کون تھکا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیٹے کی، بیٹی کی، گھر کے کرائے کی۔ ایسے ہی ہے نا، بوجھ کس کے اوپر ہے؟ جس کے پاس کروڑوں روپیہ بھی ہے نا، اس کو بھی اپنی بیٹی کا بوجھ فیل ہوتا ہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ بوجھ، خدا معاف کرے، بیٹی کسی کے لیے بوجھ نہیں ہوتی۔ یہ بوجھ ورڈ وہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے تنگ آئے ہوتے ہیں، اولاد کسی کے لیے بوجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ اس وزن کو ڈھوتا ہے ساری عمر انسان۔ لیکن جو انسان اپنے آپ کو خداوند کے حضور دے دیتا ہے، میرے عزیزو اس کے بوجھ کو بھی خداوند اٹھا لیتے ہیں۔ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہم کسی بھی شادی پہ چلے جائیں، سگے، میں کہتا ہوں وہ انسان جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے جی میں شادی تو بعد اپنے ماں پیو بھین بھرا والے گھر گیا، مینوں تے انج نیند آئی جی میں اپنے گھر ستا۔ یہ جھوٹ ہے۔ شادی کے بعد جب بیٹا اور بیٹی علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کو اپنے ہی گھر میں نیند آتی ہے، اپنے ہی گھر میں وہ سکون پاتا ہے۔ باقی سارے مائک بند کرتے ہیں پلیز، اس کی وجہ سے آواز آ رہی ہے۔ وہ اپنے ہی گھر میں سکون پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھر کو اپنی پناہ گاہ جانتا ہے۔ آپ اور میں اپنی بات کروں، میں ماں باپ کے ساتھ میں نے 20-22 سال ان کے ساتھ رہا۔ ایک زندگی کا وقت تھا شادی سے پہلے، پھر 4 سال ہم شادی کے بعد 3 سال ان کے ساتھ رہے، پھر ماں باپ نے دونوں بھائیوں کو سیپریٹ کیا۔ جب ہم سیپریٹ ہوئے اس سے پہلے ہم ماں باپ کے پاس ہی سوتے تھے، انہی کے گھر میں سوتے تھے، انہی کے ساتھ رہے ہیں، ساری عمر گزار دی۔ لیکن جب سیپریٹ ہوئے تو ماں باپ کے گھر جانا بھی مہمان کی طرح فیل ہوا، وہاں پر بھی نیند نہیں آتی تھی۔ جب گھر آ کے اپنے فرش پہ بھی سو جاتے تھے تو کہتے تھے اپنا گھر ہے۔ آج وہ بھی آپ سے یہی کہتا ہے کہ انسان کی ساری محنت جو وہ دنیا میں کرتا ہے اسے کیا حاصل ہے؟ ایک نسل آئے گی اور ایک چلی جائے گی، مگر زمین قائم رہے گی۔ تو آج میرے عزیزو ہمیں اپنے وزن کو جو ڈھوتے ہیں اس کو خداوند پر ڈال دیں، کیونکہ وہ قائم رہے گا، کیونکہ وہ قائم رہے گا۔ جب گود میں تھے تب یہ سنا، آج بڑے ہو گئے، سفید داڑھی آ گئی، بال سفید ہو گئے، تو بھی یہی سنا کہ وہی تا قیامت ہے، وہی ہے جو ہمیں بچائے گا۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں جی نہیں، خدا نے ہمیں نہیں بچانا۔ اس ایک کی بات کو مانیں یا یہ پوری دنیا کے کلام کو؟ جج بھی زیادہ گواہیوں کو قبول کرتا ہے۔ یہاں تو یہ جو بائبل مقدس ہے اس میں صدیاں گزر گئی، اور صدیاں گزرتے ہوئے تمام دنیا اسی کی گواہی دیتی رہی کہ خداوند کے کلام پر اپنی زندگی کو لگاؤ، کیونکہ جو ہم کماتے ہیں اس کا کوئی حاصل نہیں،
मैं 1 करोड़ कमा लूं और खुदावंद की मोहब्बत से दूर रहूं तो क्या फायदा। अगर मेरे अजीजों, कल रात को पूरे पाकिस्तान में लाइट गई थी, ये शायद आप लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन लाइट गई थी। जब लाइट गई उससे पहले हमारे क्वायर के बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, हम एक प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं उसके बारे में। जब लाइट गई तब इनको घर जाना चाहिए था, लेकिन यकीन करें कि उस वक्त एक खूबसूरत समा खुदावन के गीतों का बना और हम रात को 1-1.5 घंटा हम खुदा की प्रस्तुति करते रहे। और वो इरादातन ना था, वो इरादातन नहीं था कि अभी हमने प्रस्तुति करनी है, हमें क्या पता था लाइट जानी है। आप में से कोई भी आने वाले वक्त को जानता है, लेकिन हमारा खुदा जानता था। उसने कहा, हमारे दिलों में डाला, बच्चों के दिलों में डाला कि अब वक्त है कि दुनिया अपनी फिक्रों में है कि वो लाइट चली गई, लाइट नहीं चल रही, 0 बल्ब कमरे से नहीं जल रहा, बच्चों को मच्छर तंग करते हैं। आप इन तमाम चीजों को भूल जाओ और खुदा की प्रस्तुति करो। कल रात को दिल में से गवाहियां निकल रही थी मेरे कि खुदावन, मेरे बड़ों ने मेहनत की, उनके बड़ों ने की, लेकिन जो खुदा से दूर रहे उनको कुछ हासिल ना हो। लेकिन ऐ बाप, मैंने जमीन पर रहते हुए मरने से पहले तुझे अपनी जिंदगी में अपनाया, तो मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे चुना। मैं नाचीज अल्फाजों की तरतीब नहीं, मैं नाचीज चलने की तमीज नहीं, मैं नाचीज बोलने की तमीज नहीं, लेकिन फिर भी तूने मुझे चुना। मैं आया हूं तो मैं जाऊंगा भी, मैं पैदा हुआ हूं तो मरूंगा भी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो साल बाद, लेकिन एक वक्त आएगा कि मैंने जाना है इस दुनिया को छोड़कर। क्या आप सब इस बात को मानते हो कि आपने भी जाना है? लेकिन आज वक्त है कि आप खुद को टटोलो। मैं अगर एक सुई को रेत में फेंक दूं, वो चाहे जिसको हम परात कहते हैं, जिसको हम तांबिया कहते हैं, जिसको हम टब कहते हैं, एक बाल्टी, इनमें कहीं फेंक दूं तो आपको कितनी देर लगेगी रेत में से उसको ढूंढने की? कोई बता सकता है? मिलनी नहीं जल्दी, चाहे वो इतना सा, इतनी सी बाल्टी और टब क्यों नहीं। आप कहेंगे हम ऐसा करेंगे कि वो आटा छानने वाली छाननी के साथ यूं करेंगे तो नहीं निकल आएगी, वो ऊपर कहीं ना कहीं से हमें सुई निकल ही आएगी, लेकिन उसके लिए भी क्या लगता है? वक्त लगता है, टाइम लगता है। आज आप देखें, आप और मैं, हम उस रेत में गिरे पड़े हैं, हम गुनाह की रेत में दब चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सुई हिल नहीं पाती, और हम चाहें तो थोड़ा थोड़ा हिल के बता सकते हैं कि हम यहां पर है, खुदावंदा में ढूंढ ले, लेकिन उसके लिए आपको खुद हिलना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी, मुआफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जमीन कायम रहेगी, आप और मैं चले जाएंगे। इससे पहले कि जमीन कायम रहे और हम चले जाएं, क्यों ना हम खुदावन के हुजूर झुक के अपने आप को उसके हुजूर दे दे। वो रेत में हाथ डाले और हम खुद हाथ पकड़ लें। हम वो सुई नहीं है जो छाननी पड़ेगी, जो बेजान पड़ी रहेगी। हम इंसान हैं, हम खुद आगे बढ़कर खुदावन को अपनी जिंदगी में ले। बाइबल में बड़ी खूबसूरत आयत है कि मैंने तुम्हें चुना है, लेकिन जिसको चुना है वो भी खुदावन के हुजूर झुकता है। यहां वाइज बाब 1 उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, इंसान को
उसकी सारी मेहनत से जो दुनिया में करता है क्या हासिल है? क्या आप अपने बच्चों पर लगाया हुआ पैसा वापस ले सकते हो अपने बच्चों से? क्या आप मरते वक्त आप घर की जायदाद वगैरह आपके साथ जाएगी कि आप ऊपर ले जाए? लेकिन मेरे अजीजों, आप अपने साथ जो लेके जाएंगे वो है अपने बच्चों को सिखाई हुई तमीज, अपने बच्चों को सिखाई हुई मोहब्बत, अपने बच्चों को सिखाई हुई रिस्पेक्ट। वो जब आप जाओगे तो नीचे आप जिंदा रहोगे। हर कोई कहेगा पास्टर रफाकत बोल रहे हैं ना, भाई परवेज का बेटा, मेरा बाप जिंदा रहेगा लोगों के अल्फाजों में। जब मैं मरूंगा तो मेरे, अगर खुदावन मुझे औलाद देता है तो मेरी औलाद को ये कहा जाएगा कि ये बेटा पास्टर रफाकत का है। क्या आपने अभी तक कुछ ऐसा किया कि आप अपने बच्चों के अल्फाजों में जाने जाए? अपने आप को टटोले, अपने आप को टटोले, क्योंकि एक पुष्ट जाती है और दूसरी आती है, पर जमीन कायम रहती है। मैंने नहीं कहा, बाइबल मुकद्दस कहती है। अब आप सोचें कि आपको क्या करना है कि आप जिंदा रहें। आपको क्या करना है? जिंदा कोई भी सारी उम्र जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन इंसान जिंदा रहता है अपनी नेकियों की वजह से। इंसान जिंदा रहता है अपनी बदकारियों की वजह से। हर कोई तारीफ तो नहीं ना करेगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि हर कोई के ओ नहीं बहुत चंगा। कई ने कहना है पास्टर रफाकत है बेटा है ना, बेटी है ना, पास्टर रफाकत बेटा आपके पापा कभी कभी ना कलाम के वक्त बड़े गुस्से में आ जाते थे। सारे तारीफ नहीं करेंगे, कोई बुराई भी करेगा, लेकिन आप जिंदा रहोगे। लेकिन जिसने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, जिसका कोई अमाल ही नहीं, जिसका कोई मकसद ही नहीं जिंदगी में आने का, उसका जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं। उसका वाकई कोई फायदा ही नहीं दुनिया में कमाई करने का, मेहनत करने का। आज बाजी बैठे हैं, बाजी लिश्मा बैठे हैं, बाजी बुशरा बैठे हैं। अगर आप जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, तो क्या आपके बच्चों को कोई बोलेगा इसकी मामा बहुत अच्छी थी? ये आप सोचें। अगर आप, हमारा बेटा जो, क्या नाम था उसका, आकाश नहीं, वकास बेटा इस जब दुनिया से गया, यशवा, तो यकीन करे, बाजी शायद इस बात से मैंने कभी शेयर नहीं की, यहां पे खड़े होके कर रहा हूं, कि यहां पर भी ये बात होती थी कि वो बच्चा बहुत अच्छा था। गली में बात होती है कि वो बच्चा बहुत अच्छा था, आते जाते सलाम दुआ लेता था, बाप का सहारा था। वो चला गया लेकिन जिंदा है। वो चला गया लेकिन जिंदा है। लोग मेरे बाप के लिए कहते हैं कि इसका बाप बाइबल को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो चले गए लेकिन वो जिंदा है। बाजी लिश्मा के अब्बू चले गए, बाजी के अब्बू चले गए, तो जो लोग उनको जानते थे वो कहते थे ओए अंकल बड़े गुस्से वाले सन यार, लेकिन कभी कभी बड़े अच्छे सन। लाइफ को हर इंसान, कुछ लोग मुझे कहते हैं यार तेरा अब्बा ना बाइबल के मामले से बहुत गुस्से चल। आपकी जिंदगी में कायम रहे, क्योंकि एक पुश्त जाएगी और दूसरी आएगी, लेकिन जमीन कायम रहेगी। हम अगर आपसे पूछे कि आपके खानदान में कोई जज था, जज है, तो आप 5 मिनट चुप रहेंगे, फिर आप सोचेंगे मेरी मासी दी चाची दी बेटी जड़ी जज है। हर खानदान में एक छोटा और एक बड़ा होता है, लेकिन वो भी आया है तो चला जाएगा, लेकिन खुदावंद का कलाम आपके अंदर बसना चाहिए। क्योंकि जब खुदावंद का कलाम आप में बसेगा तो आप अपनी पुश्त दर पुश्त जिंदा रहेंगे। क्योंकि जिसमें खुदावंद का कलाम है वो खुदावंद का बेटा और बेटी कहलाएगा। वो खुदावंद का बेटा और बेटी कहलाएगा, क्योंकि वो उसके हुक्मों पर अमल करता है।
जो उसके हुक्मों पर अमल करेगा वो उसका बेटा और बेटी होगा। ये बात हमेशा याद रखें। आप और मैं बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वो मुकाम देखा जहां खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ? देखा किसी ने जाकर? नहीं। लेकिन हम इस बात की खुशी मनाते हैं कि हमारे बाइबल मुकद्दस ने हमें बता दिया कि वो मुकाम कैसा था। वहां चरनी थी, वहां एक अस्तबल था। अगर हम अपनी आंखें बंद करें तो हम अपने पाकिस्तानी अस्तबल ही ज़हन में बनाएंगे, वहां का कैसा हम वो नहीं देखेंगे। लेकिन हमने जो देखे वही देखेंगे ना, कि हाँ ऐसा अस्तबल, इधर एक वो मट्टी की खुरली बनी होगी, एक लकड़ी की खुरली बनी होगी, वहां बकरियां, गाय और बैल और गधे और सारे जानवर होंगे जो लोग चराते और पालते हैं। यही हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन मेरे अजीजों, वो नस्ल भी गई चली, वो पुश्त दर पुश्त भी चले गए, लेकिन खुदावंद का कलाम आज भी सुना जाता है और आज भी पढ़ा जाता है। पुराने अहदनामे में खुदावंद से शुरू हुई बात। अगर आप पुराने अहदनामे का पहला लफ्ज, मैं फिर से बोलूंगा, पुराने अहदनामे का पहला लफ्ज, जैसे वाइस की किताब में पहला लफ्ज शाह लिखा हुआ है, इस तरह बाइबल मुकद्दस की जो आपकी पैदाइश है, पुराने अहदनामे का पहला लफ्ज वो खुदा है। नए अहदनामे का पहला लफ्ज यीशु है और मुकाशवा में आखिरी लफ्ज आमीन है। कि खुदा ने आपको सिखाना शुरू किया, बेटे ने पूरा किया, और आमीन ऐसा ही हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का